خالہ جانی، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اب آپ کی ساس بننے کی عمر ہو گئی ہے؟ جب سے بخاری ولا سے آئی بیٹھی حیا موقع کی طاق میں تھی شاہدہ بیگم سے اکیلے میں بات کرنے کے لیے۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ میں بوڑھی ہو گئی ہوں؟ شاہدہ کے استفسار پر وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ گئی۔ میری پیاری سی خالہ جانی، آپ بوڑھی نہیں ہوئی ہیں، بس آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی کوئی بہو ہو جو آپ کی خدمت کرے، آپ کے چھوٹے چھوٹے پیارے پوتا پوتی ہوں جو آپ کو تنگ کریں، آپ ان کے ساتھ کھیلیں۔ شاہدہ بیگم کی آنکھوں کے سامنے ان کے چھوٹے چھوٹے پوتا پوتی کھیلتے ہوئے دیکھ کر وہ مسکرائی تھی۔ بتائیں نا، حیا کے پوچھنے پر وہ موجودہ حال میں آئی ہوئی افسردہ بیٹھی تھی۔ کیا کیا جائے، وہ الٹا حیا سے ہی رائے مانگ رہی تھی۔ شاہدہ بیگم کے پوچھنے پر وہ دل ہی دل میں خوش ہوئی۔ آخر کو وہ چاہتی ہی یہی تھی کہ شاہدہ بیگم خود اس سے رائے مانگے۔ سمپل، ارتضیٰ بھائی کی شادی کروا دیں۔ ہاتھ میں لیے ایپل کی بائٹ لیتی ہوئی وہ اپنے تحت بہت آسان رائے دے گئی تھی۔ ارتضیٰ مانے تبھی ہوگی نا اس کی شادی۔ افسردگی سے حیا کے ہاتھ سے ایپل لے کر وہ کھانے میں مصروف ہوئیں۔ وہ مان جائیں گے۔ آپ نے کوئی لڑکی دیکھی ہے یا وہ بھی میں ہی سجیسٹ کروں آپ کو؟ اپنا ایپل واپس لیتے ہوئے وہ مصنوعی خفگی سے پوچھ رہی تھی۔ حیدر کے لیے تو میں نے دیکھ لی ہے اس کی دلہن۔ ہاں، اچھے سے جانتی ہوں آپ کی چھوٹی بہو کو۔ ان کی بات بیچ میں کاٹتی ہوئے شرارت سے گویا ہوئی تھی۔ مگر ارتضیٰ کے لیے آج تک کوئی لڑکی نظر میں چڑھی ہی نہیں۔ خاندان بھر کی لڑکیوں کو سوچتی ہوئی وہ توبہ توبہ کر گئی تھی۔ میری نظر میں ہے ایک لڑکی، خوبصورت، خوش مزاج اور سگھڑ بھی۔ کون ہے وہ لڑکی اور کہاں سے ہے؟ دیوان پر بیٹھی ہوئی وہ اور چوڑی ہوئی تھی شاہدہ بیگم کے اصرار پر۔ کون ہے، کہاں سے ہے؟ سب بتاؤں گی کیا؟ آپ کو دکھا ہی دیتی ہوں۔ سیل فون میں محفوظ کی ہوئی ماہین کی چند فوٹوز شاہدہ بیگم کو دکھاتی ہوئی وہ ساتھ ساتھ ان کے چہرے کے زاویے بھی پڑھ رہی تھی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے، اور میرے شاہ کے ساتھ تو اور بھی پیاری لگے گی۔ کیا نام ہے اس کا؟ کچھ توقف کے بعد زوم کر کے ماہین کی فوٹوز دیکھنے کے بعد ماہین کی تعریفوں کے قصیدے پڑھنے شروع ہو گئی تھی۔ ہاں جانتی ہوں خالہ جانی، ماہین آپی جب تک آپ کی بہو نہیں بن کر آ جاتی، جب تک آپ ان کی تعریفیں کریں گی۔ ماہین آپی ہیں یہ ریاض چاچو کی بیٹی۔ اچھا، ماشاءاللہ ماں سے بھی بڑھ کر خوبصورت ہے۔ ماہین کی مسکراتی ہوئی فوٹو دیکھ کر وہ سچے دل سے اس کی خوبصورتی کی قائل ہوئی تھی۔ نظر نہ لگا دینا آپ میری آپی کو، اور ویسے بھی جب وہ آ جائیں گی بہو بن کر تو آپ میں خطرناک ساس والا روپ آ جائے گا۔ آنکھوں میں شرارت لیے وہ سنجیدگی سے بولتی ہوئی شاہدہ بیگم کے ہاتھ سے اپنا فون واپس لے گئی تھی۔ چل پاگل، میں بہت اچھی ساس بنوں گی، دیکھنا تم۔ حیا کے کندھے پر ہلکی سی چپت لگاتے ہوئے وہ ماہین کو دل سے پسند کر گئی تھی۔ تمہارے لیے سخت گیر ساس بنوں گی؟ حیا کا کان کھینچتی ہوئی وہ بھی شرارتی ہوئی تھی۔ اگر میرے ساتھ یہ بری ساس بنی نا تو مجھ سے کوئی امید نہ رکھیے گا کہ میں اسٹار پلس کی بیچاری بہو بنوں گی۔ وہ کیا کسی سے کم تھی؟ اچھے سے جانتی ہوں تمہیں، مگر ایک بات تنگ کر رہی ہے، ارتضیٰ کو کیسے راضی کیا جائے؟ سنجیدگی سے پوچھتی ہوئی وہ پریشان ہوئی تھی ارتضیٰ کو منانے کا سوچ کر۔ وہ تو راضی ہیں، آپ بس شادی کی بات چھیڑیں، پھر دیکھیے گا ارتضیٰ بھائی کے بدلتے رنگ۔ پورے اعتماد لہجے میں بولتی وہ مسکرائی۔ بس آپ وہ کریں جو میں کہوں گی، پھر دیکھنا آپ ارتضیٰ بھائی کے چہرے کے کھلتے ہوئے پھول۔ آنکھیں مٹکاتی ہوئی وہ پر یقین ہوئی، جیسے کہ کیا کرنا ہے وہ بھی تیار ہو چکی تھی حیا کا ساتھ دینے کا۔ حیا کو ان کا ساتھ دینے کا سن کر ڈھارس بھی ملی تھی۔ اپنے شیطانی دماغ میں چلتی ہوئی واردات کو ان کے گوش گزار کرتی ہوئی وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ مشن ارتضیٰ شاہ کی شادی پر آج سے ہی عمل درآمد شروع کرنا ہے۔ مس ماہین، آپ کا گھر آ گیا ہے، قدرے آرام سے کہتا وہ ماہین کو استحقاق بھری نظروں سے دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ بنا ارتضیٰ کو دیکھے وہ گاڑی سے اتری تھی۔ شکریہ کہوں یا نہ کہوں؟ کچھ توقف سوچنے کے بعد وہ شکریہ کہنے کے لیے مڑی تھی کہ گاڑی ارتضیٰ سٹارٹ کرتا ہوا وہاں سے بھگا کر لے گیا تھا۔ جلاد! ارتضیٰ کو جاتے دیکھ کر وہ اندر کی سمت بڑھی تھی۔ ماہین کو بخاری ولا تک چھوڑ اس کے شکریہ ادا کرنے سے پہلے ہی وہ وہاں سے آ گیا تھا۔ سارے راستے ماہین اور اپنے اس کے ساتھ گزرے لمحات کو سوچ کر وہ مسکراتا رہا تھا۔ جب سے اسے یہ پتہ چلا تھا کہ ماہین حیا کی کزن ہے، وہ بہت زیادہ خوش ہو رہا تھا۔ انہی سوچوں کو سوچ کر وہ ہسپتال جانے کی بجائے سیدھا حویلی آیا تھا۔ اچانک سے برابر میں بنے انصار ولا کی چھت پر کھڑے وہاج کو دیکھ کر اس کی مسکراہٹ کی جگہ سرد سنجیدگی نے لے لی تھی۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے وہ وہاج کے نڈر چہرے کو دیکھ کر ابرو اچکا کر داد دے رہا تھا۔ آج وہاج انصاری کسی سے نہیں ڈرنے والا ہے۔ آنکھوں میں خوف لے وہ ارتضیٰ کے سرد داد پر دل ہی دل میں عہد لے رہا تھا۔ وہاج کو ابرو سے نیچے آنے کا اشارہ کرتا ہوا ارتضیٰ اس کے اڑتے رنگ دیکھ کر لب دبا گیا تھا۔
क्यों आऊँ, मैं तो नहीं आ रहा। आज दूर से फेस करके इतना खौफ आ रहा है, सामने जाकर क्या होगा, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। खामोश चलती जंग से वह आज अपने कदम पीछे लेता सामने से हटा था। उसे पीछे हटते देखकर बेइख्तियार ही इर्तजा कहकहा लगा गया था। हंसता हुआ वो अपनी पैंट की पॉकेट से सेल फोन निकालता हुआ कुछ सोचकर नंबर डायल कर गया, जो पहली ही कॉल पर अटेंड कर लिया गया था। उसके ही फ़ोन का इंतज़ार हो मुकाबिल को। हर लिहाज से कमाल है, बस थोड़ी हिम्मत और जज्बे की कमी है और मैं खुद इस बुज़दिल में वो डाल दूंगा। संजीदगी से बोलता वो हवेली में दाखिल हुआ था। हमारी तो तमाम तर कोशिशें नाकाम रही हैं। अगर तुम उसके सोए हुए जज्बे को जगाने की ताब रखते हो तो क्यों नहीं तुम भी अपनी किस्मत आजमा लो। मुकाबिल की बात पर हैरान हुआ था वो। मतलब शक है आपको मेरी काबिलियत पर? गुलाम रसूल के किए गए सलाम पर हल्का सा सर को खम करता हुआ मामूल के खिलाफ मुस्कुराकर जवाब देता हुआ वो वहाँ से गुजरा था। हरगिज़ नहीं, मुकाबिल ने फ़ौरन से इर्तज़ा को जवाब दिया। चलें फिर बात होती है आपसे। कोशिश तो मुलाकात करने की है, देखते हैं किस वक्त खुदावन ने हमारी मुलाकात का वक्त मुकर्रर किया है। लिविंग रूम में रखे सोफे पर गिरने के से अंदाज में बैठता हुआ वो कॉल डिस्कनेक्ट करता आंखें मूंद गया था। ताई अम्मी हया कहाँ है? घर आते ही माहीन का पहला सवाल था। खैर है, आज हया भी घर में आते ही चाचू चाचू की रट लगाए हुए आई है और अब तुम उसके नाम की रट लगाए हुए आई हो। ये क्या लगा है तुम्हारे बाजू पर? माहीन के हाथ पर पट्टी बंधी देखकर वो परेशान हुई थी। कुछ नहीं ताई अम्मी, बस हल्का सा कट है। आप बताइए हया कहाँ है? पानी का ग्लास मुंह से लगाती वो फिर से इस्तफसार कर रही थी। अपनी खाला जानी की तरफ गई है। माहीन के हाथ को देखती हुई वो परेशान हुई थी। तुम सच कह रही हो ना कि छोटा सा कट है? उन्हें माहीन पर शक गुजरा था। जी ताई अम्मी, बस बैंडेज की वजह से ज़्यादा लग रहा है आपको। उनके परेशान चेहरे को देखकर वो हमेशा की तरह आज भी उन पर प्यार भरी नज़रों से उनको देख रही थी। तुम कह रही हो इसलिए मान रही हूँ, जब तक देखूंगी नहीं यकीन नहीं आएगा मुझे। तुम हया के साथ गई थी ना, तो उसके साथ वापस क्यों नहीं आई? माहीन के चेहरे पर नज़रें जमाए वो पूछ रही थी। ताई अम्मी, उसे ज़रूरी काम आ गया था तो मैंने ही उसे फोर्स किया जाने के लिए। कुछ सोचकर वो हया की हिमायत में झूठ का सहारा लेते हुए बोली थी। चलो तुम फ्रेश हो जाओ, रियाज भाई तुम्हारा कब से पूछ रहे हैं। बाबा घर पर हैं? माहीन के सवाल पर वो मुस्बत में गर्दन हिलाती हुई मुस्कुराई थी। अरे वाह, आज तो किस्मत की देवी मेहरबान हो रही है तुझ पर हया बुखारी। हवेली के पिछले गार्डन में बने हैदर के परिंद नगर के दरवाजे को खुला छोड़ हैदर को जल्दबाजी में जाते देखकर वो हैरान हुई, क्योंकि हैदर उस पर हमेशा ही बड़ा सा ताला लगा कर रखता था, मगर आज खुला देखकर वो बिना मौका जाया के अंदर दाखिल हुई थी। परिंद नगर जो बड़े से कमरे की तरह बना हुआ था, बगैर छत के चार दीवारी के बीच में लगे घने दरख्त पर बैठे रंग बरंगे परिंदों को देखकर वो हैरत अंगेज अंदाज में मुस्कुराई थी। दबे कदम चलती हुई दरख्त पर टंगे एक लोते पिंजरे को देखकर आगे बढ़ी थी। ये चंगेज खान कहाँ गया? इर्द गिर्द नजरें दौड़ाती उस पिंजरे के पास आकर वो बैठी थी। अरे वाह, आप तो बहुत ही खूबसूरत है मियाँ मिट्टू। पिंजरे में कैद रंग बरंगे परिंदों वाले खूबसूरत तोते को देखकर वो उससे मुखातिब हुई थी। माई सेल्फ निहाल। आंखें फाड़कर तोते को देखते हुए वो हैरान हुई थी। जादुई तोता। मुंह मुंह में बुड़बुड़ाई। तुम यहाँ क्या कर रही हो तबाही? हैदर जो दिलावर शाह के बुलाने पर यहाँ से गया था, वहाँ से परेशान होता वो उसकी परेशानी को मजीद तूल हया की परिंद नगर में मौजूदगी ने बढ़ा दिया था। तबाही, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, सख्तगिर लहजे में वो चबा कर पूछ रहा था। अगर एक और बार मुझे तबाही कहा ना तो मैं तुम्हारा जादुई तोता उड़ा दूंगी। पिंजरे में चक्कर काटते हुए तवील तोते को देखकर हैदर को धमकी देते हुए वो बोली, उड़ा कर तो दिखाओ। हया की धमकी पर उसे ताव चढ़ा था। उड़ा दिया तो? दोनों हाथ कमर पर रखती हुई वो मैदान में उतरी थी। टोटल तबाही। चबा कर बोलता वो हया की आंखों में आंखें डालकर बोला था। हया की आंखों के सामने चुटकी बजाता हुआ उसे वो होश में लाया था। मैं तबाही हूँ। उसकी गहरी सी आंखों में खुद को डूबते देखकर वो हड़बड़ाई थी। खुद ही मान लिया है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? पैंट की जेब में हाथ दिए वो कंधे उचकाकर शरारत से मुस्कुराया। तबाह कर दूंगी तुम्हें सड़ी हुई कुकड़ी। पैर पटकती वो गुस्से से चिल्लाई थी। तबाही हो तो तबाही मचाओगी ना, और कर ही क्या सकती हो तुम तबाही? हया को चिढ़ते देखकर वो उसे मजीद चिढ़ा रहा था। अल्लाह करे तुम्हारे सारे परिंदे उड़ जाएं। मासूम सी बद्दुआ जो कभी पूरी नहीं हो सकती थी। उड़ने होते ना तो ये सब यहाँ ना होते। दरख्त पर बैठे अपने पालतू परिंदों को देखकर वो फाते अंदाज में मुस्कुराया। उन सब परिंदों को देखकर वो अपनी दी गई बद्दुआ पर पछताई थी। अगर तो ये जादुई तोता उड़ा दिया जाए। पिंजरे की तरफ बढ़ती हुई हैदर का मुंह चढ़ाती हुई तोते को देखकर मुस्कुराई थी।
जो बेसब्री से बाहर आने की राह देख रहा था। तबाही नो। हया को पिंजरा खोलते देखकर हया का हाथ पकड़कर रह गया था। हया उठो। हया क्यों? अब बोलो ना तबाही। हैदर को लाइन पर आते देखकर वो खुश हुई थी। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तबाही तबाही ही रहती है। हैदर। हया और हैदर की होती जिद बहस से फायदा उठाता हुआ तोता अपनी चोंच के जरिए पिंजरे की अटकी हुई कुंडी खोलकर हवा में पर फड़फड़ाता दोनों को खुद की तरफ मुतवज्जो करता हवा में तैरता हुआ गुम हो गया, उड़ गया। कहा था ना जादुई तोता है, मगर नहीं माने तुम, बिना किसी के खोले उड़ गया। हैरान होती हया हैदर को खुद को घूरते पाकर अब निचला होंठ दांतों तले दबा गई थी। ऐसे परिंदे उड़ते हुए ज्यादा अच्छे लगते हैं ना कि कैद में। हैदर की नाराजगी का अंदाजा करने की खातिर वो नर्म लहजे में बोली थी, मेरा नहीं यार, तबाही वो दोस्त का था, सॉरी। हया को मिनमिनाते देखकर वो चाहकर भी गुस्सा नहीं कर सका था। अभी जाओ यहाँ से। पेशानी पर हाथ रखकर वो खुद पर जब्त कर रहा था। सॉरी वो कहकर फिर से वहाँ से चली गई। वापस बुखारी विला जाने के लिए वो मुड़ चुकी थी। सॉरी से क्या निहाल वापस आएगा? अपने दोस्त के सामने जाने का सोचकर वो परेशान हुआ था। मैं आपसे नाराज़ हूँ। रूम नॉक करके वो अंदर आई तो पुरशिकवा अंदाज में बोली थी, क्या बाबा जान सकते हैं कि अपनी बेटी की नाराज़गी की वजह? माहीन को अपने पास बैठने का इशारा करते हुए लाड उठाने के से अंदाज में उन्होंने पूछा था, पहले आप मुझे गांव लाए, मैंने कुछ नहीं कहा और साथ आ गई आपके, और आप यहाँ आकर मुझे भूल गए। बाबा के सीने पर सर रखते हुए वो नर्म लहजे में बोली थी, ये आपको किसने कहा कि बाबा अपनी जान को भूल गए? माहीन की नम आंखों में देखकर पूछते हुए वो मुस्कुराए थे। किसी ने भी नहीं, मैंने खुद फील किया है। वो हनूज सीने पर सर रखे नाराजगी जाहिर कर रही। रियाज बुखारी सब कुछ भूल सकता है मगर अपनी माहीन को कभी भी नहीं भूल सकता, समझी आप? माहीन के बालों को सहलाते हुए माहीन की पुरसकून मुस्कुराहट देखकर वो रिलैक्स हुए थे। बाबा हम घर कब जाएंगे? कुछ तवक्कुफ के बाद वो सीधी होकर बैठी थी। देखते हैं। आपने खाना खाया है? माहीन की बात पलटते वो फिक्रमंदी से पूछ रहे थे। नहीं, आज हम दोनों मिलकर खाएंगे। माहीन के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर वो चाहकर भी उसे सच नहीं बता पाए कि वो हमदान साहब को वादा दे चुके हैं हमेशा हमेशा के लिए गांव रहने का। माहीन बेटा, ये आपके हाथ पर क्या लगा है? माहीन की तमाम तर कोशिशों के बाद भी वो हाथ पर बंधी हुई पट्टी को देख चुके थे। मामूली सी चोट है बाबा, चले ना, मुझे भूख लग रही है। अपने हाथ पीछे करती वो मिनमिनाई थी, मामूली सी है ना? हाँ ना, अगर बड़ी चोट होती तो मैं शोर मचाकर ये घर सर पर ना उठा लेती। ये बात तो आपने सही कही। अपनी ही हरकत याद दिलाती वो रियाज साहब को हंसते देखकर खिलखिलाई थी। ये लो पानी पी लो। उफ अल्लाह, सर पकड़कर इर्तजा के सामने बैठती हुई शाहिदा बेगम अपनी अदाकारी के जोहर दिखाने शुरू कर चुकी थी। क्या हुआ माँ? पानी का गिलास टेबल पर रखता वो परेशान हुआ शाहिदा बेगम की हालत देखकर। चलते फिरते चक्कर आते हैं, नहीं होता मुझसे ये काम, मगर क्या करूं? तुम मुलाजमाओं के हाथों से पानी तक नहीं लेते, खाना तो फिर दूर की बात है। अब बस तुम्हारी दुल्हन देख लूं, बस अब इस जिंदगी से कोई उम्मीद और ख्वाहिश नहीं। दोनों हाथों से सर थामे हुए वो आंखें बंद किए हुए थी। जी सरकार साईं। बीबी साईं की तबीयत नासाज रहने लगी है। शाहिदा बेगम की सिखाई हुई मुलाजमा को ध्यान से सुनता हुआ इर्तजा परेशान हुआ। बस मेरी बहू आ जाए, तुम्हारी सारी जिम्मेदारी उसे सौंप कर आज़ाद हो जाऊंगी। मुलाजमा को जाने का इशारा करती वो इर्तजा का परेशान चेहरा देखकर दोबारा आंखें बंद कर गई थी। आपको बहू की नहीं, विटामिन डी की ज़रूरत है, कमज़ोरी हो रही है आपको। शाहिदा बेगम की तकलीफ का हल निकालता वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। याद से विटामिन डी की मेडिसिन सोने से पहले दूध से ले लीजिएगा। अपनी सुनाता हुआ वो वहाँ से बड़े बड़े कदम लेता वहाँ से चला गया। इर्तजा को जाता देख वो अपना प्लान फेल होते देखकर अफसुर्दा हुई थी। हेलो, अननोन नंबर देखकर बुरा सा मुंह बनाकर उठाती वो बेजारियत से बोली। माहीन की मासूम आवाज़ सुनकर वो मुस्कुराया था। जख्म कैसा है अब आपका? बिना दिल की सुने वो मुद्दे पर आया था। डॉक्टर जल्लाद। इर्तजा की आवाज़ सुनते ही दिमाग में ये नाम आया था। ठीक है, पर मेरा नंबर कैसे आया आपके पास? इर्तजा की कॉल पर वो हैरान हुई थी। ये मेरे लिए कोई मुश्किल अमर नहीं रहा, आप उसे छोड़ें। ये बताएं, दर्द तो नहीं हो रहा? कार की बैक सीट पर सर रखे वो पुरसकून अंदाज में मुस्कुरा रहा था। आपसे मतलब? तिरछी सी कहती हुई वो फ़ोन रख गई थी, मगर अगले ही पल इर्तजा का मैसेज पढ़कर उसके लब खुद ब खुद मुस्कुराए थे। पेन किलर भेज रहा हूँ आपके लिए, ले लीजिए, दर्द नहीं होगा। इतना बुरा भी नहीं है ये डॉक्टर जल्लाद, मगर है तो जल्लाद ही ना। अपने जहन में इर्तजा के लिए मुस्बत सोचें झटकती हुई फ़ोन को बेड पर फेंकने के से अंदाज में रख वो खिड़की के पास जा खड़ी हुई थी। पहली मुलाकात में इर्तजा भाई रात के इस पहर यहाँ पहुँच गए थे, और वो भी गिफ्ट लेकर। वाह भाई वाह,
खिड़की से कार में बैठे हुए इर्तज़ा शाह को देखकर शाह हवेली के मुलाजिम गार्ड को बॉक्स पकड़ा कर वो वापस गाड़ी में जा बैठा था। अपने कमरे से भागती हुई वो गार्ड से शॉपर लेकर उसे जाने का कहती हुई तजस्सुस से बॉक्स खोलकर देखती हुई हैरान हुई। एक भाई जिसे मोहब्बत दिखाई नहीं देती और एक ये हैं जिन्हें मोहब्बत तो हो गई है पर करनी नहीं आती। बंदा फूल भिजवाता है, कोई ज्वेलरी, कोई गिफ्ट भेजता है, मगर यहाँ तो मेडिसिन भेजी जा रही है। जिस तजस्सुस के साथ उसने बॉक्स खोला था उतनी बदमज़गी से बंद करती हुई वो माहीन के रूम का दरवाज़ा बजाने लगी। माहीन आप ही दरवाज़ा तो खोलें यार। जब से वो शाह हवेली में आई थी, जब से ही माहीन ने उसे बात तक नहीं की थी, यहाँ तक कि अपना रूम भी अलहदा करवा लिया था। अब भी माहीन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। कोई नहीं, कब तक रूम में बंद रहेंगी, सुबह तो खोलेंगी ना। मुलाजमा को बॉक्स देती हुई वो माहीन के रूम के बंद दरवाजे को देखकर अपने रूम की तरफ बढ़ गई। सच में मेडिसिन भिजवा दी उस डॉक्टर जल्लाद ने। सलीमा से मेडिसिन बॉक्स लेती हुई वो हैरान हुई थी। ये संगदिल इंसान मुझ पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है? कहीं अपनी वहशत तारी करने के लिए तो नहीं? अभी इतना अच्छा बन रहा है, जब मैं इसे अच्छा समझने लग जाऊंगी तो ये फिर से अपना वो मॉल वाला रूप दिखाएगा मुझे। झुरझुरी लेती हुई वो मैसेज टोन पर मुतवज्जो होती इर्तज़ा का मैसेज पढ़कर और हैरान हुई। मैं उस पहेली की मानिद हूँ माहीन बुखारी, जिसे अगर तुम सुलझाने बैठोगी तो खुद से ही गाफिल हो जाओगी। और ये मत समझना कि ये मेडिसिन मैंने तुम्हें कायल करने के लिए भेजी हैं। ये सिर्फ एक डॉक्टर होने का फ़र्ज़ अदा किया है मैंने, और कुछ नहीं। मेडिसिन लेकर आराम से सो जाएं। मैं आपको आपके ख्वाब में डराने का कोई इरादा नहीं रखता। एक एक लफ्ज़ को ध्यान से पढ़ती वो आखिरी लफ्ज़ पर मुंह बनाकर बोली थी, बड़ा आया, समझता क्या है खुद को, जैसे मैं डरती हूँ इससे। माहीन रियाज अपने बाबा के अलावा किसी से नहीं डरी, तो ये जल्लाद कौन सी खेत की गोभी है जिससे मैं डर जाऊं। इर्तज़ा के खौफ को हवा में उड़ाती हुई पेन किलर लेकर वो बेड पर दराज होती हुई मुंह तक कंफर्टर लेकर आंखें बंद कर गई थी। कोई असर नहीं हुआ तुम्हारी तरकीब का, उल्टा मुझे विटामिन डी की मेडिसिन की हिदायत देकर जाता बना। इर्तज़ा के लिए लंच तैयार करती हुई वो रात वाली इर्तज़ा की हिदायत पर हिम्मत हार गई थी। कोई बात नहीं है, एक प्लान फेल हुआ है ना, अभी तो और भी हैं मेरे दिमाग में। वैसे क्या कर रही हैं आप? अपने प्लान के फेल होने का उसे ज़रा दुख ना हुआ था। इर्तज़ा के लिए खाना बना रही हूँ, और क्या कर सकती हूँ? मसरूफ़ से अंदाज में वो अफसुर्दगी से बोली थी। मिर्ची तेज़ कर दें और नमक भी ज़्यादा डाल दें। अपने बालों को हाई टेल में बांधती हुई वो ड्रेसिंग टेबल पर फ़ोन स्पीकर पर रखती हुई अपनी झील सी आंखों में भर भर के काजल डालती हुई अचानक से बोली, पागल हो गई हो क्या हया? उन्हें हया की ज़हनी हालत पर शक गुजरा था। मैं होश में ही हूँ खाला जानी, आपको बहू चाहिए कि नहीं, या कुंवारे बेटे को देख देख कर उम्र गुजारने का इरादा है आपका? चाहिए। फ्राई पैन में अपनी पकाई हुई फ्राइड भिंडी को देखती हुई वो हया को जवाब दे रही थी। शाहिदा बेगम के फ़ौरन से जवाब देने पर वो मुस्कुरा दी थी। तो आप अपनी ममता को साइड पर रखें और नमक मिर्च ठोक दें। ठोक दूं मतलब? नासमझी में पूछती हुई वो अगर उस वक्त हया को मुस्कुराते देख लेती तो उसका गला दबा देती। मतलब बिना हाथ रोके डाल दें। वैसे बना क्या रही हैं? फ्राइड भिंडी। शाह ने आज फरमाइश करके बनवाई है। लहजे में प्यार समोए वो दिल खोल कर मुस्कुराई थी। अपनी ड्रेस के साथ स्ट्रॉलर मैच करते वो फ्राइड भिंडी का सुनकर मुंह में पानी लिए अफसोस कर रही थी कि वो शाह हवेली में ना थी। स्पाइसी खाने से एलर्जी है शाह को। ममता ने फिर सर उठाया। मेडिसिन से ठीक हो जाएगी। वैसे ही मेडिसिन बांटते फिर रहे हैं आजकल। ड्रेसिंग टेबल पर रखे फ़ोन को छोड़कर वो वॉशरूम में हाथ धोने की गर्ज से गई। ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई तो? वैसे ही बहुत हसास है। हया को पुकारती हुई माहीन शाहिदा बेगम की आवाज़ पर मुतवज्जो होती फ़ोन हाथ में उठा चुकी थी। कहाँ गई तुम हया? कोई जवाब तो दो। अस्सलामुअलैकुम आंटी, मैं माहीन बात कर रही हूँ। हया वॉशरूम में है। आपको काम था हया से? अपने मखसूस अंदाज में बोलती वो शाहिदा बेगम के जवाब की मुंतज़िर थी। कैसी हो माहीन बेटा? आपने तो चक्कर ही नहीं लगाया हमारी तरफ। माहीन की आवाज़ सुनकर उन्हें इर्तज़ा का ख्याल आया। ऐसी ही नर्म तबीयत की बीवी तो वो ढूंढ रही थी इर्तज़ा के लिए। बस आंटी, आपकी भांजी मुझे अपने साथ लाना ही पसंद नहीं करती। वॉशरूम से हया को बाहर आते देखकर माहीन उनसे शिकवा कर गई। वो तो है ही पागल, आप तो समझदार हैं, आप खुद आ जाएं। माहीन के हाथ से फ़ोन लेती वो तड़क कर बोली, खाला जानी आपको नहीं लगता आज के लिए इतना काफ़ी है? हया की आवाज़ सुनकर उन्हें वापस उसकी तरकीब का ख्याल आया था। अगर ज़्यादा स्पाइसी हो गया तो एलर्जी हो जाएगी ना। तो आंटी आप स्पाइसी बनाई ही मत। शाहिदा बेगम की परेशान आवाज़ सुनकर माहीन से रहा ना गया। बिना देखे बिना जाने इतना ख्याल है तो मेरे इर्तज़ा से
मिलने के बाद कितना होगा। दिल ही दिल में खुश होती वो भिंडी में एक साथ नमक मिर्च डालने लग गई। खाला जानी जो कहा है वो करें। माहीन से नजरें चुराती वो लफ्जों पर जोर देती हुई फोन रख गई। आप यहाँ क्या कर रही हैं? माहीन को देखकर वो रुख मोड़ गई थी। नाराज मैं हूँ तुमसे और नखरे तुम दिखा रही हो। हया के लिए दिए से अंदाज पर माहीन हैरान हुई थी। हाँ तो नाराज होना सिर्फ आपको आता है, मैं नहीं हो सकती आपसे नाराज। कल रात की बात पर पहले आपने अपना रूम चेंज कर लिया और ऊपर से दरवाज़ा भी नहीं खोला मेरे लिए। उस सलीमा के लिए तो बड़ी जल्दी दरवाज़ा खोल दिया था आपने। अब जवाब ना दें, अब ऐसे क्यों देख रही हैं आप मुझे? तरकी बतरकी बोलती वो माहीन को हैरान देख रही थी। वो माहीन के हैरान चेहरे को देखकर इस्तफसार कर गई थी। पानी का ग्लास एक सांस में खाली करती वो बेड पर बैठती हुई फ़ोन स्क्रीन पर उंगलियां चलाने लगी। हाँ तो थी मैं, बल्कि हूँ। किसके सहारे पर मुझे अस्पताल छोड़कर आई थी तुम? माहीन के पूछने पर अपने मुंह को बंद रखती वो अनजान बनी बैठी रही। अगर मैं फिर से गुम हो जाती तो? मेरा सामना करने की बजाय तुम अपनी खाला जानी के घर चली गई। फिर तुम मुझसे ये उम्मीद रखती हो कि मैं रूम भी चेंज ना करूँ, तुमसे नाराज़ भी ना हूँ। गुस्से में भी खुद पर जब्त रखती हुई हया को फ़ोन पर मसरूफ़ देखकर वो कुलसी थी। जवाब है आपके पास हया बीबी। हया के हाथ से फ़ोन छीनती हुई वो उसके रूबरू आन खड़ी हुई। हाँ तो सॉरी कहा तो था और मैसेज भी किया था। और रही बात आपको वहाँ अस्पताल में छोड़कर जाने की बात, तो वहाँ सब बाबा को जानते हैं, इसलिए आपको छोड़कर आई थी। न मांग के लिए वो बड़ी आसानी से बात दबा गई। अब रो क्यों रही हो? हया की आंखों में आंसू देखकर वो खुद अफसुर्दा हुई थी। नहीं हूँ नाराज़ मैं, तुम रोना बंद करो। वो हया को रोते देखकर खुद भी रूहान सी हुई। सच्ची मुच्ची? माहीन के गले लगते हुए वो खुशी से चिल्लाई। आज ना बहुत अच्छा दिन होगा आपके लिए और मेरे लिए। माहीन के हनूस गले से लगी वो सोचकर मुस्कुराई थी। अब दोबारा तो नहीं करोगी ऐसा? हया से अलग होती वो अपनी आंखों में आई नमी को साफ करती पूछ रही थी। कभी भी नहीं। कान पकड़कर गर्दन नफी में हिलाती हया को देखकर वो मुस्कुराई। अम्मो जानी ने बताया था कि आपके हाथ पर कट लगाए, कैसा है वो? ठीक है, अब रात में पेन किलर ली थी तो और बेहतर हो गया। कट को देखती वो मुस्कुराई थी। बड़ी मुस्कुराहट आ रही है पेन किलर को सोचकर, मतलब मोहब्बत की पहली सीढ़ी पर कदम रख लिया है। माहीन को मुस्कुराते देखकर वो दिल ही दिल में सोचकर खुश हुई थी। आप मुस्कुरा रही हैं, क्या बात है? जबान तो आखिर जुबान है, फिसल ही जाती है। और वही हुआ, हया की जुबान भी फिसल गई थी। ये सोचकर मुस्कुरा रही थी, इस मामूली से कट को देखकर मैं इतना रोई थी। अब जब सुबह पट्टी खोली तो देख अपनी बेवकूफ़ी पर हंस रही थी। वैसे आप ही किसने लिफ्ट दिया आपको? मेरा मतलब है कौन छोड़ कर गया था आपको घर तक? मारे तजस्सुस के पूछती वो अनजान बनी हुई थी। मिन्नत अस्पताल के डॉक्टर ही थे, किसी भी एहसास से आरी लहजे से जवाब देती। हया के ख्यालों पर वो पानी डाल गई थी। अच्छा तुम्हें क्या हुआ? हया लटके हुए मुंह को देखकर उसे पूछ गई। कुछ नहीं, ऐसे ही। तैयार हो जाएं, आज शाम खाला जानी आएंगी। अपनी टून में आती हुई वो चहकी थी। मेरा तैयार होना लाजमी है क्या? हया की बात पर वो शॉक्ड हुई थी। ऐसे ही बोल रही थी मैं तो, आपकी मर्जी। कंधे उचकाकर कहती हुई वो माहीन के दिमाग को दाद दे गई थी।